Okay. The first question is in which the resistance and inductance are connected in series. Resistance is 12 ohm and inductance is 0.1 Henry. And these are the answers with inductive reactance comes out to be 31.416 ohms. Okay. Yes, anybody from you tell me that what's the formula you have applied to calculate this inductive reactance? Anybody from you? Inductive reactance. What's the formula you have L applied? omega. L omega. Yes, it is L omega. Okay, L is given in the circuit, that is 0.1 and omega is 2 pi f. F is 50. Okay, so you got this answer 31.416 and the units are ohms. Next, to calculate Z. Yes, what's the formula? Root under XL square plus R square. Yes, correct. That is the R square plus XL square whole square root. Okay, then for the current, Current that is ERMS is 100 volt. Impedance yes, 33.63 ohm. And therefore we get IRMS equals 100 by 33.63, that is yes. 2.97. Yes, it is 2.97. You directly divide this voltage 100 by this Z 33.63 and you got this answer. Okay. And next, how to calculate this pi? Pi, that is tan inverse 5 pi by 6. Yes, tan inverse of 5 uh, pi by 6. or XL by R. है ना? Yeah, ये भी yes कर ma'am. सकते XL by R, that is 5 हैं. pi by 6. Yes, XL is 31.416 and R is your 12 volts. Yes, then the answer for P, power. Power comes Actually, this answer is not there in the book. 105.95 watt because IRMS cos phi. Yes, the formula is E into I into cos of phi. Okay, E is 100. It is given in the question, and I is you have calculated, that is 2.97, and cosine of this phi, that is 69.1 degree. The cosine of this, and what's the answer? 105.95 watt. 100. दोबारा बोलो. 105.95 watt. 95. 105.95 watt. Yes, everybody got this answer. I just want to tally from anybody else also कि सभी का यही आंसर आया है, that is 105.95 watt. Okay, then next, what's the voltage across the inductance? Or you can write here EL also. What is the voltage across the inductance? That is IXL. Yes, it is I into XL. I is your 2.97, XL is 31.416. Yes, upon calculations, what's the answer? Yes. Yes, what's the answer comes out to be? 93.305. 93.28. 93.30 or 8? Mine is 93.28. 93.30. It's okay. Okay, and it is in the volts. Okay, so these are the answers for the last first numerical, and this is your second numerical in which there is resistance, inductance, and capacitance. And these are the answers. Firstly, to calculate this XL, it comes out to be 44 ohms. Is it correct? Yes ma'am. It is a 44 ohms XL, and XL is the same formula, that is L omega, and then XC is 1 by C omega, and the answer is 21.22 ohms. Then finally you have to calculate Z. Yes, what's the formula for Z? Root under XL minus XC whole square plus R square. Yes, it is R square plus XL minus XC whole square and here. Okay, this Z comes out to be 24.88 ohms.
And finally the current then comes out to be, that is directly divide this 200 with Z and you got 8.04 ampere. Then these are the this is the voltage. Actually this is the voltage across the coil. Okay, this is the voltage across the coil. Coil means the combination of resistance and inductance. This we called as the coil. इसको हम coil बोले. ठीक है? The combination of resistance and inductance we called it as the coil. And let me write here. This is the coil and this is EL is the voltage across the coil. And what's the formula for this? Yes, anybody from you? Formula to calculate the voltage across the coil. IR plus ILXL. Yes, that is means first you have to calculate the impedance of the coil. Okay. Firstly, you have to calculate the impedance of the coil, that is R square plus XL square square root, and then multiply it with I. I am simply write here I into ZL. Okay. And what is ZL? ZL is equals to R square plus XL square and square root. Okay, this is ZL. So multiply this ZL with I, you got the voltage across the coil, and the answer comes out to be 362.8 volts. Okay, now next is the voltage across the capacitance. You can also call it as a condenser. Okay, that is the voltage across the capacitance. And here the formula applied is I into XC. I into XC. Okay, this comes out to be 170.6 volts. Okay, now tell me this, the phase angle between the voltage and current. Firstly, tell me the formula for this. Tan phi Formula to equals calculate XL the minus XC phase. by R. Huh? Phi equals tan inverse XL minus XC by R. Yes, correct. It is tan inverse of XL minus XC by R. And what's the answer comes out to be? 66.28 degree. 66.28 degrees. Okay. Now finally for the power, it's the same formula, that is E into I into cos of phi. Yes. What's the answer for this? 647.248. 647.248 watts. What? Okay. So these are your last numericals, and this type of numerical generally comes in the exams. इस तरह का numerical हो सकता है, and in which the just these values are given, जो भी circuit में है, and all these you have to calculate. Ma'am, ठीक है, can ये we have some more tutorial solution in PDF format? What? Can we have some more tutorial solution in PDF format for practice? You can solve from the book. We have shared the book na, with you, PDF of the book. If you want some more numerical problems, I will send you. Okay, I will. Ma'am, I didn't find answer of these questions, ma'am. I tried over there. There wasn't. Have you with you the book with you? No, ma'am, no any book. Okay, let's start with the next topic, that is the power factor. And before defining this, that what is the power factor, let us assume that there is some circuit having inductive nature. Okay, some circuit with inductive nature, and for that circuit, our here is E. If we take the vector E as a reference, and then for the inductive nature circuit, the current is lagging by any angle phi. Okay, the current is lagging by any angle phi, and let's resolve this current into the two mutually perpendicular components. इसको हम resolve कर देते हैं. So this component on the side of E, this we called it as the I cos phi, and this component you can written as I sin phi. By resolving I into the two components,
we are resolving into I cos phi and I sin phi, and then this I cos phi, that is the horizontal component, this is called as the active component of current. इसके तीन चार नाम है, ठीक है. You can call it as the active component of current, or you can call it as the wattful component of current. तो किसी भी नाम से कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि जस्ट कैलकुलेट द एक्टिव कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, ओके. और यू कैन कॉल इट एज द इन फेज, you can call it as the in phase component because it is in phase with E. That's why it is also called as the in phase component of current, or you can also call it as the energy component of current. Okay, so these are the most common names for this I cos phi. You can call it as the active component of current, wattful component, in phase component, or the energy component of current. Okay, similarly, I sin phi, this component, this one. Okay, I sin phi can be called as, जैसे इसको active बोला था तो I sin phi is called as the reactive component of current. Reactive component, or it is called as the wattless component. Wattless component, और यहाँ पे in phase था तो here it is the quadrature phase component. Quadrature phase component of current, and here is the energy, and this one is the ideal component of current. क्या है क्वाड्रेचर? क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट. इसका क्या मतलब मैम? जैसे क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट. ठीक है, ये इन फेज कंपोनेंट बोला था, यहाँ पे इसको हम क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट. ठीक है, सिमिलरली जैसे इसको एक्टिव बोला था तो दिस वी कॉल्ड एज द रिएक्टिव कंपोनेंट. ठीक है, इसको वॉटफुल बोला था, इसको वॉटलेस बोलेंगे. ठीक है, या इन फेज या क्वाड्रेचर, मतलब ये इनके कुछ नेम्स हैं जो कि जनरली न्यूमेरिकल्स में बोला जाता है कि जस्ट कैलकुलेट द in phase component of current. So what is the in phase component of current? That is the I cos. Okay, and if they tell ki calculate the quadrature phase component of current, so that is I sin phi. Okay, so these are some of the names for this I cos phi and I sin phi. मैम आइडियल फेज कंपोनेंट है. Ideal component. Ideal component of current. Okay, now after defining these components of current, we have to define some powers. Actually power factor के टॉपिक पे आने से पहले ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि पता होने चाहिए. पावर हमने लास्ट एनालिसिस में हमने जो कैलकुलेट किया, दैट इज ई आई कॉस फाई. एक्चुअली पावर इज ऑफ थ्री टाइप्स. Okay, there are three types of power. One is the active power. Okay, I'm going to write it here, and I'll just, number one is the active power. Number two is reactive power. And number three is the apparent power. Active power, reactive power, and apparent power. Okay, now the symbol for active power is P. The symbol for reactive power is Q, and the symbol for apparent power is S. Okay, this one is P, Q, and S.
The formula for active power is, what is active power actually? जो इसकी definition बोली जाती है that it is the product of net voltage with the active component of current. Okay, that is the product of net voltage with the active component of current. That means E multiplied by I cos phi. This is the formula for active power, or you simply write as EI cos phi. Okay, and the units for active power are watt. Generally we calculate power, जो हम न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करते हैं, that is the active power, वो active power होती है. Okay, now next is the reactive power. So what is the definition for reactive power? It is the product of net voltage with the quadrature component of current or with the reactive component of current. ठीक है, that is the product of net voltage with the reactive component of current, that is the reactive power. इसको हम reactive power बोलते हैं, and it is E multiplied by I sin phi. Okay, this is the formula for reactive power, that is EI sin phi. That is the sign of the phase angle between the voltage and current. ठीक है, उसका sign लेना है. And the units for this is, it is measures in VAR. इस तरह से इसकी यूनिट लिखी जाती है. ठीक है, that is the capital V, capital A, V is for the volts, A is for the amperes, and छोटा सा साथ में R डाल देते हैं, that is symbol for the reactive. Okay, so units can be written in this form. इसके जैसे it is written as a capital W. ठीक है, so here it can be written in VAR. Now finally third type of power, that is apparent power. And the definition for the apparent power is, it is the product of net voltage and net current. Okay. It is the product of net voltage and net current, that is E into I. Simply. Okay. It is E into I. And the units for this can be simply written as VA. Okay, that is volts amperes. So there are three types of powers. One is the active power, another one is the reactive power, and the third one is the apparent power. Okay, formula is EI cos phi, EI sin phi, and the E into I. यहाँ पे अगर E की जगह सिंबल अगर तुम V भी लिख देते हो, that is also correct, क्योंकि बुक्स में कई बार इसको V भी यूज किया हुआ है, that is VI cos phi. Okay, or VI sin phi or V into I. Here the units are watts, here it is VAR, and here it is VA. Active, reactive, and apparent power. ठीक है. Now next is, we have to draw the power triangle by using these three powers. मुझे इन तीनों powers को use करके एक power triangle draw करना है. बहुत important है, बहुत exams में आता है ये. ठीक है, कि draw the power triangle and explain its all the three sides. उसको explain करना होता है. Now I have to draw the power triangle. This is power triangle, and here is the angle phi. Now tell me, where is active power, where is reactive power, and where is S on these three sides? एक्टिव कहाँ पे होगी, रिएक्टिव कहाँ पे होगी, और एस कहाँ पे होगा? हॉरिजॉन्टल वाली एक्टिव, वर्टिकल वर्टिकल वाली रिएक्टिव, और Yes. वो हाइपोटेन्यूस वाली एपरेंट. यस, गुड. ठीक है, सो दिस हॉरिजॉन्टल साइड इज EI cos phi, कोसाइन वाली, दैट इज दिस वन इज P, here it is Q, and here it is S. ठीक है, so this question generally comes in the exams कि draw and explain the power triangle. ठीक है, तो उस केस में
तुम लोगों को ये ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है एंड ये सारी साथ में एक्सप्लेनेशन देनी होती है, देयर फार्मूलाज, देयर यूनिट्स, ये सारा कुछ बताना होता है। ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड द पावर ट्रायंगल। नाउ आफ्टर दिस, नाउ वी कम टू द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की भी 2-3 डेफिनेशंस चलेंगी। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर पावर फैक्टर, जनरली इसको पी एफ इस तरह से भी लिखा होता है बुक्स में, पी डॉट एफ। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज, इट इज द cosine of the angle between the voltage and current. Okay, so what is the first definition? It is the cosine of the angle between voltage and current. So power factor का जो पहला फॉर्मूला निकलता है फर्स्ट डेफिनेशन से, that is cos of phi. ठीक है, जस्ट cos of phi को we called it as the power factor। मतलब ये जो फॉर्मूला है पावर का e i cos phi, तो इसमें इस कंपोनेंट को, ये जो cos phi का कंपोनेंट है, दिस we called as the power factor। इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ओके, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल रहता है उसका अगर कोसाइन लेते हो तो दैट इज द पावर फैक्टर। Now next second definition. Second definition है, हमने एक ड्रॉ किया था, इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया था हमने, ठीक है, जब एनालिसिस किए थे लास्ट एनालिसिस, तो उसमें हमने एक इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया था। तो लेट मी ड्रॉ दैट इम्पिडेंस ट्रायंगल इन विच हियर इज आर, यहाँ पे फाई रहता था, बेस पे आर होता था, परपेंडिकुलर साइड चाहे वो अपर साइड है चाहे वो नीचे लेगिंग में आए तो उसको हम x लिखेंगे सिंपली, चाहे वेदर इट इज xl और वेदर इट इज xc। तो एंड ऑन द हाइपोटेन्यूज इट इज z, एंड फ्रॉम दिस इम्पिडेंस ट्रायंगल there is second formula for power factor, that is cos of phi, that is equals to, that is base upon hypotenuse. Oh, sorry. Yes, it is based upon hypotenuse. It is R by Z. This is the second formula for the power factor, that is cos phi equals to R by Z. That is resistance divided by the net impedance. Okay, whether that impedance consists of only RL circuit or RC circuit or for the RLC circuit. Okay, this formula holds for every type of circuit. That is R by Z. Now, third formula or third definition for the power factor, that is taken from the power triangle. यहाँ से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे इसका। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ से कॉस पाई क्या निकलेगा, दैट इज, यस, व्हाट इज द कॉस पाई, P by S. P by S. यस, इट इज द एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय द एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय apparent power. So these are the, डेफिनेशन के सेम ही हो गई, yes, फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही हो गई नहीं, डेफिनेशन। फर्स्ट इज सिंपली cos phi, इसको हम बोलते हैं दैट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसको हम ये डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले में ये जस्ट मैंने कि तुमने यहाँ से cos निकालना है इसीलिए मैंने ये साथ में लिख दिया है cos phi cos। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन में तुम क्या बोलोगे, दैट इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस, and in the third formula you defined as, it is defined as the ratio of active power to the apparent power, चाहे निकलेगा उसका cos phi ही निकलेगा। ठीक है, और फर्स्ट डेफिनेशन में यू कैन कॉल एज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, इसको इस तरीके से बोलना। ठीक है, so these are the three formulas for the power factor, and whatever the values that are given in the numerical you can apply accordingly the formula। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज द पावर फैक्टर। नाउ नेक्स्ट सम
प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द पावर फैक्टर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पावर फैक्टर की, कि जनरली अगर पावर फैक्टर कम हो जाए तो क्या होता है, या ज़्यादा हो जाए, या इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अकॉर्डिंगली सम प्रॉपर्टीज, firstly the value of power factor lies between 0 to 1। पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, ये हम वैसे भी हमें पता है कि जो कोसाइन होता है ना, कोसाइन की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0। किसी भी एंगल का हम कोसाइन लेते हैं तो मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1। 1 के ऊपर 2, 3, 4 कोसाइन की वैल्यू 0। ओके, सो पावर फैक्टर इज एज रिप्रेजेंटेड बाय cos फाई। तो पावर फैक्टर की भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई जाती है। ठीक है, बाकी पावर फैक्टर की कुछ अपनी नेचर होती है, इट इज लीडिंग, इट इज लैगिंग। ठीक है, पावर फैक्टर इज लीडिंग एज वेल एज पावर फैक्टर इज लैगिंग। फॉर द कैपेसिटिव सर्किट, अगर सर्किट हमारा कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का रहता है। ओके, अगर सर्किट हमारा इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का रहता है। ओके, तो जनरली पावर फैक्टर की जो कर्व बनाई जाती है तो वो इस तरीके से हम बनाते हैं, लाइक दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, दिस इज 0, हियर इट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। कॉस इज मैक्सिमम एट विच डिग्री, कॉस कहाँ पे जीरो मैक्सिमम रहता है? जीरो तो जीरो ठीक पे। है, इसकी फिर ये कर्व नहीं बनेगा, दिस इज फॉर द साइन। तो इसको इस तरीके से तुम दिखा सकते हो। ठीक है, cos इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम रहेगा, दैट इज 1 वैल्यू होती है। cos ऑफ 0 डिग्री इज 1, है ना, एंड 90 डिग्री के ऊपर 0 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द लैगिंग ग्राफ एंड दिस वन इज द लीडिंग ग्राफ। ठीक है, ये लैगिंग नेचर रहती है, दैट इज इंडक्टिव, एंड दिस वन इज द लीडिंग नेचर फॉर द कैपेसिटी। एंड वन थिंग मोर, सम डिवाइसेस, तुम्हें जस्ट डिवाइसेस के ना नाम नोट डाउन करने हैं। अगर पावर फैक्टर कई बार सर्किट में कम हो जाता है तो देयर आर सम डिवाइसेस टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो फर्स्ट डिवाइस इज नंबर 1, कैपेसिटर बैंक्स। जस्ट यू हैव टू नोट डाउन द नेम्स। बाकी इसकी डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि हाउ द पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग दीज डिवाइसेस, तो उसकी काफ़ी डेरिवेशंस होती हैं। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन दीज नेम्स। कैपेसिटर बैंक्स, इसमें जनरली शंट कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, शंट मतलब पैरेलल में। ठीक है, और जो सेकेंड डिवाइस हम जनरली यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, SHUNT। यस, शंट, SHUNT। शंट मतलब पैरेलल कनेक्शंस हम लगाते हैं कैपेसिटर्स के। ओके, जो सेकेंड डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज द सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, सिंक्रोनस मशीन्स हमने पढ़नी है, लेकिन इसको हम लास्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस machines, you just note down these names. Capacitor banks and synchronous machines are used to improve the power factor of any circuit. ठीक है, किसी भी, चाहे इंडस्ट्री में है जहाँ पे भी पावर फैक्टर कम हो रहा है, उसको इम्प्रूव करना है, देन वी आर गोइंग टू यूज द कैपेसिटर बैंक्स और द सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि जैसे पावर फैक्टर कम हो रहा है, तो अगर पावर फैक्टर कम हो जाता है तो क्या उसके नुकसान क्या है? ठीक है, क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका?
जस्ट उसके 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, कि अगर पावर फैक्टर कम है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लाइक एज पावर इज ई आई कॉस ऑफ 5। अगर मैं बोलूं कि मेरा पावर फैक्टर कम हो रहा है, इफ माई दिस cos phi कंपोनेंट रिड्यूसेस, अगर मेरा cos phi का कंपोनेंट रिड्यूस हो रहा है, तो मेरी ओवरऑल पावर को अगर मुझे सेम रखना है तो मेरा करंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो अगर पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, मैं जस्ट इसको एरोस के साथ इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरा पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट है इंक्रीज हो जाएगा मेरा। ठीक है, इफ वी आई हैव टू मेंटेन द सेम पावर आउटपुट, मुझे पावर अपनी सेम रखनी है, ये फैक्टर मेरा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरी वोल्टेज पीछे से सप्लाई कांस्टेंट आ रही है, 220 आ रही है या जितनी भी मेरे को चाहिए उतनी आ रही है, तो उससे अकॉर्डिंगली मेरा करंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि करंट में वेरिएशन चलती रहती है। एंड इफ करंट इंक्रीजेस, अगर करंट इंक्रीज कर जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉसेस होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, ये अभी जाके हम ट्रांसफॉर्मर्स में भी पढ़ेंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज कर दे, क्योंकि करंट इंक्रीज हो गया, आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज हो गए। आई स्क्वायर आर लॉसेस के इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीटिंग इंक्रीज हो जाती है डिवाइस में, जो डिवाइस हमारी होती है वो गर्म होने लग जाती है। ठीक है, so I square R losses are directly related to the temperature of the device. टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिवाइस का गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस finally my efficiency of the device decreases. ठीक है, मेरे डिवाइस की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इवन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि माय डिवाइस आल्सो बर्न्स आउट, खराब भी हो सकती है परमानेंटली। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू मेंटेन द पावर फैक्टर or to improve the power factor using these devices, और जनरली इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के अलग से यूनिट्स लगे होते हैं। ठीक है, और पावर फैक्टर की जो कॉमन वैल्यू है, हम नहीं कहते कि पावर फैक्टर हमेशा 1 के बराबर हो, यूनिटी नहीं अचीव हो पाता। ठीक है, तो पावर फैक्टर की जो नॉर्मल वैल्यू है इट इज बिटवीन, ये रहनी चाहिए होती है 0.8 to 0.9, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव पावर फैक्टर, 0.85 और 0.8 to 0.9। सो इससे अगर पावर फैक्टर कम होना शुरू हो जाता है तो दैट मीन्स कि डिवाइस का करंट इंक्रीज होने लग जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी डिवाइस की, और डिवाइस के जल्दी बर्नआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई पावर जनरेटिंग स्टेशन है, हर जगह पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का यूनिट लगा होता है। ठीक है, देयर आर डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट एनी इंडस्ट्री जिसमें कि पावर फैक्टर को विद इन लिमिट्स में रखने की प्रोविजन होती है। ठीक है, सो दीज डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड कैपेसिटर बैंक्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ओके, so just go through this topic now for just 1 minute. समझ 0.8 वो क्या है? This is the nominal value for the power factor, क्योंकि हम कहते हैं कि पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 to 1, बट 1 नहीं अचीव हो पाता कि प्रॉपर, मतलब पूरी अच्छी वैल्यू इज 1, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली टू अचीव। सो 0.8 to 0.9 इसकी जनरल वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज की या मशीन्स की वैल्यू पावर फैक्टर की 0.8 से 0.9 वेरी करती है, और अगर 0.8 से नीचे जानी शुरू हो गई, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया या 0.7, तो इसका मतलब है कि हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो डिवाइसेस आर नीडेड, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके,
So just go through this topic, then we have मैं to see पावर to भी the कांस्टेंट next होती है topic. यहाँ पे। पावर हमारी मतलब कोशिश होती है कि पावर को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है। हमें जो आउटपुट चाहिए हम उतनी कांस्टेंट रखते हैं, उतनी वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, और उसके लिए करंट इफेक्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे करंट इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और करंट जब बढ़ना शुरू हो जाए तो मतलब एफिशिएंसी सिस्टम की डिक्रीज होनी शुरू होती है, ओके ओके। सो यू हैव टू रिप्रेजेंट द पावर फैक्टर एज लाइक 0.89 हमारे कैलकुलेशन करके आया है, और साथ में लीडिंग या लैगिंग तुम बताओ। अगर ओवरऑल सर्किट की नेचर इंडक्टिव नेचर आ रही है, इंडक्टिव नेचर कब होती है? इंडक्टिव मींस व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। जब सर्किट में XL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो दैट मींस लैगिंग, ठीक है। अगर XC की वैल्यू ज्यादा है XL से तो दैट मींस लीडिंग नेचर, दैट मींस दैट सर्किट हैज द लीडिंग नेचर। सो पावर फैक्टर जब भी कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स में, तो यू हैव टू राइट अलोंग विद द वैल्यू दैट इट इज लीडिंग और इट इज लैगिंग, और कोई साथ में यूनिट्स वगैरह नहीं लिखने होते हैं, जस्ट यू हैव टू मेंशन लीडिंग और लैगिंग, ये चीज बतानी होती है, और वो यहाँ से तुम्हें पता लगेगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस, a very important topic. XL is equals to XC. Yes, resonance is XL equals to XC. हाँ जी, और कैसे डिफाइन करोगे इसको? In what situations XL is equal to XC? किन situations में XL equal to XC है? Actually इसकी resonance की दो तीन Omega is equals conditions to है, 1. हाँ? Omega is equals to 1 by root LC. Yes, that is also good. वो तो डेरिवेशन करके निकलेगा ना, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, एक तो जैसे इसने बोला XL is equal to XC, ठीक है। और सर्किट की नेचर कैसी होती है फॉर द रेजोनेंट सर्किट? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सर्किट? Resistive. Resistive. यस, इट इज द रेजिस्टिव नेचर। सर्किट की जो नेचर है दैट इज द रेजिस्टिव नेचर, ठीक है। और फाई कितना होगा? फेज एंगल कितना होता है? 0. फेज 0. एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री फेज एंगल का मतलब क्या है? E and I are in phase, ठीक है। ये दोनों फेज में रहते हैं, E और I, और ये E और I जब फेज में होंगे तभी रेजिस्टिव नेचर है ना, दैट इज द कंडीशन फॉर द रेजिस्टिव नेचर ऑफ द सर्किट। एंड फाई अगर 0 डिग्री रहता है तो व्हाट इज द पावर फैक्टर? 1. पावर फैक्टर इज 1. 1, ठीक है। That means for any resonant circuit the power factor is always equal to 1. Okay, so now we are going to write down its definition. Resonance, yes, resonance, it is a phenomena taking place in any series circuit. I'm going to write here, it is a phenomena taking place in any series or parallel RLC circuit. It is a phenomena taking place in any series or parallel RLC circuit which results in unity power factor. Okay, I'm again repeating. It is a phenomena taking place in any series or parallel RLC circuit which results in unity power factor.
ठीक है, किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है तो दैट इज सेड एज द रेजोनेंट सर्किट, हम उसको रेजोनेंट सर्किट बोलेंगे। एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर द रेजोनेंट सर्किट, दैट फॉर अ रेजोनेंट सर्किट power factor is unity, phi is 0 degree, that means E and I are in phase with each other, the circuit is of resistive nature, and XL is equal to X. Okay, so these are the conditions for any resonant circuit. और इसी के साथ ही हमारी, अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर लेट मी सपोज दैट कि माय सर्किट इज अ रेजोनेंट सर्किट, देन व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट, उस सर्किट की इम्पीडेंस क्या होगी? R. यस, इट इज सिंपली आर, चाहे वो सर्किट आरएलसी सर्किट है, चाहे किसी भी फॉर्म में लगे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है, जैसे भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स लगे हुए हैं कंपोनेंट्स के, बट द इम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट इज आर। ठीक है, तो सर्किट की जो इम्पीडेंस रहती है दैट इज Z इज इक्वल्स टू R, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ओके, तो इसी के साथ ही रेजोनेंस के साथ ही एक और डेफिनेशन हमारे साथ आती है, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर भी बोलते हैं इसको जनरली में, क्वालिटी फैक्टर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यू फैक्टर। हाँ जी, ये पता है किसी को व्हाट इज क्यू फैक्टर? नो? ओके, actually Q factor is represented by the letter Q. It is defined as the ratio of maximum energy stored per cycle, एक साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी कहाँ से स्टोर होगी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि जो सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगे होते हैं दैट आर द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। ओके, द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस्ट per cycle. Okay, so this is the formula for the Q factor, and also this Q factor is the reciprocal of power factor. It is the reciprocal of power factor, और जनरली हम यही अप्लाई कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में कि जहाँ पे भी Q फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द पावर फैक्टर, टेक इट्स रेसिप्रोकल एंड देयर कम्स आउट टू बी द Q फैक्टर। ठीक है, या फिर इसी से ही और फॉर्मूले लिख सकते हैं, जैसे पावर फैक्टर था R/Z, तो दिस कैन बी Z/R। ठीक है, पावर फैक्टर था एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, तो दिस कैन बी रिटन एज S/P। तो पावर फैक्टर से ही ये और कुछ और फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट नाउ स्टार्ट विद द रेजोनेंस। एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो करके फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। Now starting with the first topic of the resonance, that is the resonance in RLC series circuit. A very important topic from the exam point of view. इसकी डेरिवेशन आती है प्लस साथ में अटैच न्यूमेरिकल जरूर होता है, और इसकी जो डिफरेंट कर्व्स बनती हैं, ग्राफिकल एनालिसिस है इसका कंप्लीट, वो एक्सप्लेन करना होता है इन डिटेल। ठीक है, तो पूरा 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन निकलता है अकेला रेजोनेंस का। Okay, so the first topic about the resonance, that is resonance in RLC series circuit. इसी की एक डेरिवेशन करके खत्म करेंगे। It is RL resonance in RLC series circuit. Okay, firstly draw the circuit diagram.
कोई भी, चाहे तुम्हें न्यूमेरिकल आता है ना, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो या कोई भी एनालिसिस करना है, कोई भी डेरिवेशन करनी है, उसका साथ में फिगर जरूरी है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे पता लगता है कि स्टूडेंट हैज गॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट। आर एल सी सीरीज सर्किट है। Here I am going to apply this voltage E. Here is I. These are the components R, L, and C. So starting with the same, that is the condition of the resonance, that is XL is equal to XC. This is the condition for any resonant circuit. We are going directly apply this condition. And what is XL? अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था इसका फॉर्मूला जो निकलता है, that is L into omega, and XC is 1 by C omega. Okay, so upon solving it can be written as omega square is equals to 1 by LC, and further omega is 2 pi f square is equals to 1 by LC. Yes, what's the F comes out to be now? Yes, what's the 1 by formula? 2 pi n root LC. हाँ जी, 1 by 2 pi n root LC. so here 1 it by 2 is. pi under root 1 by LC. दोबारा बोलो। 1 by 2 pi under root 1 by LC. 1 by 2 2 pi. pi under root LC. हाँ जी, ठीक है। ठीक So this ठीक is the formula for frequency, and we called this represent this frequency as FR. इसके साथ मैंने ये छोटा सा R डाल दिया है because this is called as the resonant frequency. Okay, this is called as resonant frequency. ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं पे खत्म करेंगे, बट लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें लिखवाना है आज छोटा सा, वहाँ पे फिर खत्म करेंगे, क्योंकि इसका अभी आगे कंप्लीट ग्राफिकल एनालिसिस होना है, दैट वी हैव टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस, लेट्स नोट डाउन वन न्यूमेरिकल। There is RLC series circuit connected across the AC supply, and the voltage is 230 volt, 50 hertz. Okay, the resistance is 20 ohms, inductance is 0.2 Henry, and the capacitance is 150 microfarad. ठीक है, वन थिंग टू नोट डाउन हियर दैट कि कई बार ना न्यूमेरिकल्स में जैसे यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 0.2 हेनरी, ठीक है, या यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 150 माइक्रोफैरड, तो कई बार इस तरीके से वैल्यू नहीं दी होती, तो दे कैन डायरेक्टली राइट हियर एज, जैसे लिखा होगा यहाँ पे 20 ओम्स इस तरीके से, ठीक है, या यहाँ पे लिखा हो सकता है कि 22 ओम्स। तो यू मस्ट हैव टू चेक द यूनिट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 ओम लिखा है इंडक्टेंस के साथ 20 ओम लिखा है, तो व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका? XL. हाँ, तो दैट मीन्स ये L की वैल्यू नहीं दी है, ये XL की वैल्यू दे रखी है, तो ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करना है। तो काफी कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इस चक्कर में कि यूनिट्स चेक करो कि वेदर इट इज हेनरी और ओम्स। अगर हेनरी है तो दैट मीन्स L इज गिवन, अगर ओम्स है तो दैट मीन्स XL इज गिवन। Okay, so but here it is 0.2 Henry and 150 microfarad.
connected across a 230 volt 50 hertz source, and you have to calculate number one impedance, Z, number two current I, number three nature and value of पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है और उसकी नेचर भी बतानी है कि वेदर इट इज लीडिंग और लैगिंग नेचर। ठीक है, तो उसका मैंने बताया था कि यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एक्सएल एंड एक्सी, तो वहां से पता लगेगा तुम्हें कि पावर फैक्टर की जो नेचर है दैट इज लीडिंग और लैगिंग। ओके, एंड नंबर 4 you have to calculate the frequency of supply. Just write this: frequency of supply to be adjusted to make the power factor unity। ठीक है, यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट में मैंने पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया था, तो जितना भी आया था लेट अस सपोज कि दिस कम्स आउट टू बी 0.8 और 0.9 जितना भी आया। ठीक है, तो मुझे अब वो जो पावर फैक्टर आया था ना वो आया था 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, अब मुझे इस सर्किट की वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसके ऊपर मेरा पावर फैक्टर यूनिटी है। हाँ जी, क्या करोगे इस पार्ट में? रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो फ्रीक्वेंसी निकाल के ना एक बार वेरीफाई जरूर करना कि वेदर नाउ द पावर फैक्टर कम्स आउट टू बी यूनिटी और नॉट। ठीक है, सो दिस वन इज योर होमवर्क एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यस, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड?